معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ نائجیریا میں قتل عام، 110 افراد ہلاک۔ 54 سالہ ٹائسن رنگ میں پھر چھا گئے۔ یو اے ای کا قومی دن، 12 ارب ڈالر کی تقسیم۔ لو جہاد کا پہلا معاملہ بریلی میں درج۔ جی ایچ ایم سی الیکشن، وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا نظام تہذیب ختم کر کے حیدرآباد کو بنائیں گے چھوٹا ہندوستان۔ آپ کو غیر قانونی مہاجرین کو نکالنے سے کون روک رہا ہے؟ اویسی نے امت شاہ کو دیا کرارا جواب۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، حیدرآباد کا نام تبدیل کرنے کے یوگی کے بیان اویسی پر پلٹوار۔ بی جے پی کو جملہ اور حملے کے سوا کچھ نہیں آتا، کے ٹی آر۔ کرونا ویکسین کے نام پر نریندر مودی کی حیدرآباد آمد انتخابی ڈرامہ بازی۔ حیدرآباد صدر پردیش کانگریس اتم کمار ریڈی۔ نیوار طوفان سے شہر کڑپا کو کروڑوں کا نقصان، بارش تھم گئی، تباہی و بربادی کے نشانات چھوڑ گئی۔ باشا ٹورز اینڈ ٹریولز کی خدمات قابل ستائش، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ نائجیریا میں قتل عام، 110 افراد ہلاک۔ نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں ایک قتل عام میں کم از کم 110 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر کسان شامل ہیں۔ اتوار کے روز افسران نے یہ اطلاع دی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ ہلاکتیں ہفتے کے روز دوپہر سے قبل تشدد زدہ صوبے بورنو کے علاقے میدوگوری کے قریب کوشوبے نامی گاؤں میں ہوئی ہیں۔ اس واقعے میں بنیادی طور پر کسانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ su uku sun taka za su zo gida a saman tudu mu muna karkashin kwari ko da muka taka kawai gawakin su muka gani su uku. Federal government to recruit more enforcement personnel to protect farmers in the region. He said people were faced with a desperate choice, either to stay home and die of starvation or to leave their farmland and get killed by insurgents. 54 سالہ ٹائسن رنگ میں پھر چھا گئے۔ مائک ٹائسن نے یہ ثابت کر دیا کہ عمر نے ان کی طاقت کم نہیں کی ہے۔ سابق ہیوی ویٹ چیمپئن نے رنگ میں واپسی کرتے ہوئے ہفتے کو لاس اینجلس میں ایک نمائشی مقابلے میں رائے جونس جونیئر کا سامنا کیا اور اپنے حریف پر بھاری پڑے۔ تاہم اس مقابلے کو حیرت انگیز طور پر ڈرا قرار دیا گیا۔ اپنے وقت کے دو زبردست باکسرز کے درمیان 8 راؤنڈ کے اس مقابلے کے دوران سرکاری طور پر کسی کو ونر قرار نہیں دیا گیا۔ ان دونوں باکسرز کی عمر تقریباً 50 سال سے زائد ہے۔ یو اے ای کا قومی دن، 12 ارب ڈالر کی تقسیم۔ امارات ابو ظبی نے 2 دسمبر کو متحدہ عرب امارات کے قومی دن سے قبل 6100 سے زیادہ شہریوں میں مکان یا زمین خرید کر دینے کے لیے یا قرضے کی شکل میں 7 ارب 20 کروڑ درہم یعنی 2 ارب ڈالر کی رقم تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ابو ظبی کے میڈیا دفتر نے ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ مکانات کے فوائد کے تیسرے پیکیج کے تحت اس سال کے دوران میں کل 7.2 ارب درہم کی رقم تقسیم کی جائے گی۔ لو جہاد کا پہلا معاملہ بریلی میں درج۔ بریلی گورنر کے دستخط کے بعد کل نافذ ہونے والے لو جہاد کے نئے قانون کے بعد پہلا معاملہ بریلی ضلع کے دیوریان تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ پریشان کن فریق کا الزام ہے کہ دوسرے مذہب کا نوجوان مذہب تبدیلی کرنے کا دباؤ بنا کر شادی کرنا چاہتا ہے۔ राज्यपाल महोदया द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 को अधिसूचित किए जाने के बाद कल पूरे प्रदेश में यह अधिनियम, यह कानून, यह लॉ लागू हो गया। कल ही थाना देवरनिया जनपद बरेली
में एक प्रार्थना पत्र श्री टीकाराम द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उनके गांव के ही दूसरे धर्म के एक लड़के द्वारा उनकी बेटी पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में ये प्रार्थना पत्र पर तत्काल मुकदमा वहां लिखा गया, FIR लिखी गई, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 361/20 है, 504, 506 और इस नए अधिनियम की धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 के तहत ये FIR की गई है और नियमानुसार इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा स्वयं की जा रही है। GHMC इलेक्शन, वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, निज़ाम तहजीब ख़त्म करके हैदराबाद को बनाएंगे छोटा हिंदुस्तान। 1 दिसंबर को होने जा रहे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की तशहीर के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह इतवार को हैदराबाद में रोड शो के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि TRS तरक्की की राह में रोड़ा बन रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी को वोट दें ताकि हैदराबाद में बीजेपी का मेयर बन सके। अमित शाह ने हैदराबाद से लोगों का गर्म जोशी से इस्तेमाल किए जाने के लिए शुक्रिया भी अदा किया। क्योंकि आज जिस प्रकार का स्वागत हैदराबाद के रोड पर मैंने देखा है, शायद ही मैंने तेलंगाना में, हैदराबाद में, अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार का स्वागत देखा है। जिस गर्म जोशी के साथ हैदराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया है और अपना समर्थन इस चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए जताया है, इसलिए मैं हैदराबाद की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे रोड पर जहां पर भी गए 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। आपको गैर कानूनी मुहाजिरीन को निकालने से कौन रोक रहा है? ओवैसी ने अमित शाह को दिया करारा जवाब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार के रोज़ सवाल किया कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को गैर कानूनी रोहिंग्या मुहाजिरीन को हटाने से कौन रोक रहा है। ओवैसी ने कहा कि शाह पहले वज़ीर दाखिला बन गए हैं जो गैर कानूनी तौर पर रहने वाले लोगों को हटाने के लिए किसी मेंबर पार्लियामेंट से इजाज़त के ख्वाहां हैं। मजलिस को वोट दिए तो मुल्क के मफाद में नहीं है। क्यों पाशा, मुल्क तुम्हारे बाप का है, हमारा नहीं है, और हमारे बाप का मुल्क है ये। अब सुनो, इसके बाद कल से फिर चर्चे होंगे अपनी बात का कि भोलकपुर में बोले क्या करते कर लो, बैगन को बोले मगर अगर कोई ये समझ के आ रहा कि मैं काबिज हो जाऊंगा, कब्जा करूंगा, खुदा की कसम कोई कब्जा नहीं करेगा, ना हम करने देंगे, ना किसी को यहां पर काबिज होने का मौका देंगे। ये हमारा शहर है, ये आपका शहर है, और हैदराबाद का मुकाबला किससे मालूम आपको? उन लोगों से जो हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना चाहते। ये धमकियां किसी और को देना, हैदराबाद का नाम तब्दील करने के योगी के बयान ओवैसी पर पलटवार। BHMC के इंतखाबात में बीजेपी की वसी मुहिम जुई के दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हैदराबाद का नाम तब्दील करने के बयान पर मकामी रुकन पार्लियामेंट और AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जवाबी हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के लोग यहां का नाम बदलना चाहते हैं, यहां रहने वालों को पाकिस्तान, अफगानिस्तानी और रोहिंग्या करार देते हैं। ओवैसी ने कहा कि 1 दिसंबर को मजलिस के हक में वोट डालकर यहाँ के अवाम उनके मुंह पर तमाचा रसीद करेगी। गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर यहाँ की जनता भाग्यनगर नाम बदल
ये इनकी सोच है। वो चीफ मिनिस्टर आए यूपी से, उन्होंने बोले मैं नाम बदल देता हूँ। अरे भाई साहब आप क्या ठेका लेके रखे? अच्छा इनसे पूछो ताजमहल कौन बनाया? बीजेपी को जुमला और हमले के सिवा कुछ नहीं आता। केटीआर टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने बल्दी इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन गोशा महल, सनात नगर और सिकंदराबाद असम्बली हलकों में रोड शो के जरिए टीआरएस उम्मीदवारों की मुहिम में हिस्सा लिया। केटीआर के रोड शो गैर मामूली कामयाब रहे और हज़ारों की तादाद में आवाम ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेते हुए टीआरएस की तायद का इजहार किया। అయినా పెద్దలు చెప్తారు సింహం ఎప్పుడు సింగల్ గానే వస్తది, కేసీఆర్ గారు సింగల్ గానే వస్తాడు, గుంపులు గుంపులుగా ఏమొస్తాయి నేను అనలేదు భయ్, కేసు అయితే మీ మీద అయితే నాకైతే తెలియదు. 10-12 మంది వస్తుండట మంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు, పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు, మోడీ సాబ్ కూడా వస్తుండట రేపు ఎల్లుండో. ఇక మరి రేపు ఎల్లుండో డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా వస్తారేమో, ఇక ఆయన ఒక్కడే ఖాళీగా ఉన్నాడు. ఎవరు మిగిలినరిగా? కేంద్రం నుంచి వస్తున్న కేంద్ర మంత్రులారా వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. కాకపోతే ఉత్త చేతులతో ఊపుకుంటూ రాకండి. కేసీఆర్ గారు డిమాండ్ చేసినారు తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన 1350 కోట్లు ఇవ్వమని. అవి తీసుకొనే అడుగు పెట్టండి హైదరాబాద్ గడ్డ మీద, లేకపోతే రానియరు, లేకపోతే నిలదీస్తారు అని నేను చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ప్రజలు అడుగుతారు, సమాధానం చెప్పండి. ఎలక్షన్ అట హైదరాబాద్ ఎలక్షను, హైదరాబాద్ గల్లీలో ఎక్కడ రోడ్ ఉండాలి, ఎక్కడ మోరి ఉండాలి, ఎక్కడ లైట్ ఉండాలి, దాని గురించి కాదట. ఈ ఎలక్షన్ అట బిన్ లాడెన్కు బాబర్కు దేశభక్తులకు మధ్యన పోటట. ఈ బిన్ లాడెన్ ఎవడు, బాబర్ ఎవడు, వాడు హైదరాబాద్కి ఎప్పుడు వచ్చిండు, వాంతో మనకేం సంబంధము? ఎటు పడతాడు నోటికి అన్ని గీ పిచ్చి మాటలతో మాట్లాడి జనంను మొత్తానికి ఆగం చేసి గందరగోళం చేసి పిల్లగాళ్ళని రెచ్చగొట్టి ఉద్వేగాలు రెచ్చగొట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పచ్చగా ఉన్న హైదరాబాద్లో చిచ్చు పెట్టాలి. ఆ చిచ్చులో సలిమంట కాచుకోవాలనే ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. कोरोना वैक्सीन के नाम पर नरेंद्र मोदी की हैदराबाद आमद इंतखाबी ड्रामाबाजी। हैदराबाद सदर प्रदेश कांग्रेस अतम कुमार रेड्डी ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर कोरोना वैक्सीन का ड्रामा करने और अमित शाह पर तेलंगाना अवाम की तौहीन का इल्ज़ाम आयद किया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अतम कुमार रेड्डी ने बल्दी इंतखाबी मुहिम में अवाम के दरमियान खौफ व दहशत और नफरत का माहौल पैदा करने के लिए टीआरएस, बीजेपी और मजलिस को तनकीद का निशाना बनाया। కాంగ్రెస్ హయాంలో స్థాపించిన భారత్ బయోటెక్ లో వ్యాక్సిన్ పరిశీలించినట్టుగా ఆయన ఒక డ్రామా చేస్తాడు. అంటే నరేంద్ర మోదీ గారు రాకుంటే భారత్ బయోటెక్ లో వ్యాక్సిన్ అయితే ఆగదు కదా. ఆయన 3 రోజుల తర్వాత వచ్చినా కానీ ఏం ప్రమాదం లేదు కదా. ఇది ఇంత పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ విధంగా మరీ ఈ చిల్లర స్థాయికి దిగజారడం, ఇది యావత్ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకి హైదరాబాద్ని అవమానపరచడం అని చెప్పి నేను మనం చేస్తాను. निवार तूफान से शहर कड़पा को करोड़ों का नुकसान, बारिश थम गई, तबाही व बर्बादी के निशानात छोड़ गई। रियासत आंध्र प्रदेश ज़िला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, निवार तूफान से शहर कड़पा के अवाम को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। जुमेरात के दिन अचानक बुकावंका प्रोजेक्ट से नदी में पानी छोड़ने की वजह से अवाम को अपने घरों से बाहर जाने का भी मौका नहीं मिला। नदी से मुत्तसिल इलाकों यरमुकपल्ली, नागाराजुपेट, पेंटा, रविंद्र नगर, मुरादिया नगर, सरमदिया नगर, बिस्मिल्ला नगर, येवन नगर, अफसर खान कॉलोनी, अलमास पेट, यानादी कॉलोनी के मकानों और दुकानों में अचानक नदी का पानी दाखिल हो जाने से नाकाबिले बयान नुकसानात उठाना पड़ा। घरों के तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात, गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गईं। घरों में कीचड़ जमा हो गया। अब तक भी अवाम कीचड़ निकालने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। तिजारती इलाकों मद्रास रोड, ववी स्ट्रीट, पुराना बस स्टैंड के तमाम दुकानों में पानी जमा हो जाने से करोड़ों के नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मुतासिरा अवाम सिर्फ तन के कपड़ों से अपनी ज़िंदगी बचाने में कामयाब हुए हैं। अब तक किसी के हलाक होने की रिपोर्ट खबर नहीं है। हज़ारों ख़ानदान अपना घर बार छोड़कर रेस्क्यू सेंटर और रिश्तेदारों के घरों में जाकर अपनी जान बचा सके हैं, ताहम घरों के सामान का नुकसान हो गया।
घरों का सामान, कपड़े, टीवी, फ्रिज, दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया मुकम्मल नाकारा हो गए। घरों में जमा अनाज का ज़ख़ीरा भी पानी की नज़र हो गया, जिससे अवाम में काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। पेशगी पानी छोड़ने की इत्तला दी जाती तो इतने नुकसानात नहीं होते। मुतासरा अफराद के हर घर में यही हालात नज़र आ रहे हैं। मुतासरा अफराद के हर घर के यही हालात नज़र आ रहे हैं। बाशा टूर्स एंड ट्रैवल्स की खिदमत काबिल सताइश। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा ने आज बादशाह टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर का कड़पा में इफ्तिताह किया। इस मौके पर अमजद बाशा ने इस ट्रैवल्स की सताइश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 50 बरसों से बादशाह टूर्स एंड ट्रैवल्स बेहतर खिदमत अंजाम दे रहा है। ज़िला के अवाम में ये एक मोतबर नाम है। सन 1959 से ये ट्रैवल्स हज और उम्रा के लिए मोतबर नाम माना जाता है। अवाम का भरोसा है इस ट्रैवल्स पर। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में ये ट्रैवल्स अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। इस मौके पर आस्ताने बगदादिया के सज्जा नशीन मोहम्मद अली बगदादी, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना स्टेट हज व उम्रा वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सिराज खान के अलावा बादशाह टूर्स एंड ट्रैवल्स के मैनेजर पार्टनर हाजी बादशाह और दूसरे मौजूद थे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।